So question based on what beta? Factoring services. See, now A Limited has a total sales of rupees 3.2 crores. What beta? Total sales 3.2 crores means 3 crores 20 lakhs. ठीक है, ये क्या हो गया आपका 3 crores 20 lakhs. Yes or no? Okay. And its average collection period is what? Average collection period है 90 days का. Average collection period क्या बेटा? 90 days का. Total sales है 3.2 crores and its average collection period is what beta? 90 days. Okay. What beta? Average collection period is what beta? 90 days. Okay. Now the past experience indicates that bad debts losses are 1.5% on sales. Now past experience indicates what? That bad debts losses, what? That bad debts losses are 1.5% on sales. Okay. Now the expenditure incurred by the firm, in administering its receivable, the expenditure incurred by the firm in administering its receivable collection efforts are rupees 5 lakhs. Okay, so expenditure incurred by the firm in administering its receivable collection efforts are rupees 5 lakhs. Means credit administration का जो cost है, that is given, administration cost, that is 5 lakhs. A factor is prepared to buy the firm's receivable. What now? A factor is what beta? Prepared to buy the firm's receivable by charging 2% commission. How much? 2% commission. Factor ready है firms का receivable लेने के लिए, उसका collection करने के लिए, but factor will charge what beta? 2% commission. 2%. Okay. The factor will pay advance on receivable to the firm. The factor will pay what beta? Advance on receivables. What beta? The factor will pay advance on receivables to the firm at an interest rate what? At an interest rate of 18% per annum. At an what beta? Interest rate of what? 18% per annum. So remember it. Factor will pay advance on receivables to the firm at an interest rate of 18% per annum. मतलब factor क्या करेगा? Advance देगा. किसको एडवांस दे रहा है? कंपनी को, फर्म को. ठीक है, वो एडवांस दे रहा है और 18% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेगा. ओके, आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एंड रिजर्व. बराबर है, कितना परसेंट रिजर्व रखेगा वो? 10% का होल्डिंग रिजर्व रखेगा, मतलब 10% का मार्जिन रख रहा है भाई. फैक्टर 10% का मार्जिन रखने के बाद ही आपको क्या देगा? एडवांस देगा. दैट्स इट. ठीक है, अब फैक्टर एडवांस देगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बेटा? 18% पर एनम का इंटरेस्ट है. 18% पर एनम का इंटरेस्ट है. ठीक है, तो फैक्टर आपको एडवांस भी दे रहा है. रिसीवेबल्स आपका फैक्टर्स कलेक्ट करेगा, डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा. तो कंपनी क्या बोलती है? तब तक हमारे पास वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए पैसा नहीं है, तो आप कलेक्ट करना ठीक है, लेकिन अभी हमको एडवांस दे दो. तो फैक्टर क्या करेगा? एडवांस दे देगा. बट फैक्टर अगर एडवांस देगा तो भाई इंटरेस्ट भी तो कमाएगा उसके ऊपर, तो इसलिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो कितना परसेंट बेटा? 18% पर एनम. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म and assume 360 days in a year में 360 days assume करना है, and we have to calculate the effective cost of factoring to the firm. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा. अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन में देखो, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अपने को दिया है 5 lakhs. फैक्टर को अपॉइंट करोगे तो आपका बैड डेट्स बच जाएगा, ये भी बेनिफिट्स है. बैड डेट्स आपका सेव हो जाएगा ना, क्योंकि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग. अगर याद रखो कुछ भी नहीं बोला है, what you have to assume? You have to assume non recourse factoring. तो non recourse factoring में बेटा बैड डेट्स कौन बियर करेगा? फैक्टर. ठीक है, तो इससे कंपनी को एक और बेनिफिट हो गया, बैड डेट्स का टेंशन नहीं. बैड डेट्स का टेंशन नहीं है. ठीक है, बराबर. तो ये सब अपना दिया है बेटा, ये पूरा क्वेश्चन है. अब इसके बेसिस पे अपने को स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. उसके लिए सबसे पहले अपने को चलो नेट एडवांस निकाल लेंगे, फिर एनुअल स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, इवैल्यूएशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट इफेक्टिव कॉस्ट. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस सम. कैलकुलेटर लेके बैठना अपना.
So for solving this sum, company name A Limited at the top, calculation of what, पहले निकालना है अपने को net advance, बराबर है, calculation of net amount, that is net advance will be paid to the firm or company by the factor. भाई फैक्टर कितना अमाउंट देगा, कितना एडवांस देगा, नेट एडवांस निकालना है अपने को, ठीक है, क्योंकि फैक्टर एडवांस दे रहा है ना बेटा, तो कितना एडवांस देगा वो निकालने के लिए आ जाओ। सबसे पहला द वेरी फर्स्ट वन, वेरी फर्स्ट वन, अरे भाई एडवांस देगा किसके ऊपर, रिसीवेबल्स के ऊपर ही ना बेटा, डेटर्स के ऊपर, डेटर्स, तो एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल कितना है वो पहले कैलकुलेट कर लो यार, ठीक है। सो आ जाओ, एग्जिस्टिंग व्हाट बेटा, डेटर्स और रिसीवेबल्स, और बेटा एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल्स, ठीक है। चलो तो कितना है डेटर्स, 3 करोड़ 20 लाख है, 3 करोड़ 20 लाख, राइट। अब आपको पता है एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल का, ठीक है, कलेक्शन पीरियड कितना है, 90 डेज है, इंटू 90 डेज डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, 360 डेज, पूरे ईयर में कितना डेज अज्यूम करना है आपको, 360 डेज, ओके। सो एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल्स 3 करोड़ 20 लाख इंटू 90 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड है, डिवाइडेड बाय 360 डेज, सिंपल, कैलकुलेटेड, कितना आ रहा है, मतलब 90 डेज का रिसीवेबल्स कितना हो गया, 80 लाख, ओके। सो दिस इज व्हाट 80 लाख, बराबर है। सो 90 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड है, तो अकॉर्डिंगली 80 लाख आ गया, ओके। वेरी गुड यश, वेल डन धीरज। चलो नाउ अब देखो 80 लाख तो देगा, अब भाई 90 डेज का कलेक्शन पीरियड है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि भाई ठीक है मैं कलेक्ट करूंगा, मैं कलेक्ट कर लूंगा 90 डेज के बाद डेटर से, ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो कंपनी को तो पैसा चाहिए ना, वो 90 डेज अपना वर्किंग कैपिटल, भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग तो चाहिए, बराबर है, तो फैक्टर देगा ना भाई, वही तो निकल रहा है नेट एडवांस। लेकिन फैक्टर वो पैसा देने से पहले क्या बोलेगा कि भाई इसका डेटर तो 80 लाख है 90 डेज का, बट फैक्टर क्या करता है, मार्जिन क्रिएट करता है, एक होल्डिंग रिजर्व रखता है, पूरा 80 लाख तो देगा नहीं, वो भी थोड़ा प्रोविजन करके रखेगा ना, मार्जिन, मार्जिन तो निकालेगा ना वो, तो उसने कितना मार्जिन होल्ड किया है, 10%, क्वेश्चन में बोला है ना आपको, कितना मार्जिन होल्ड किया बेटा उसने, सी वेयर इज इट, यस, आफ्टर विद होल्डिंग 10% एज रिजर्व, आफ्टर विद होल्डिंग वो 10% एज रिजर्व, ठीक है, तो 10% का मार्जिन है, 10% का रिजर्व है, तो आ जाओ लेस व्हाट बेटा, 10% मींस क्या, फॉर एडवांस होल्डिंग रिजर्व या मार्जिन, और व्हाट बेटा, एडवांस होल्डिंग रिजर्व और मार्जिन, ठीक है, राइट। चलो कितना परसेंट, 10%, सो 80 लाख का 10%, कितना मार्जिन रखेगा, तो कितना आ गया, 8 लाख, बराबर है। चलो नाउ 80 लाख माइनस 8 लाख कितना हो गया, 72 लाख, तो बेटा ये जो 72 lakhs हुआ, दैट इज व्हाट, ग्रॉस एडवांस, यस वेरी गुड, वेल डन जयेश, वेल डन जयेश, वेरी गुड धीरज, परफेक्ट। सो दिस 72 lakh is what your gross advance, we can say that this is what gross advance, बराबर है कितना, 72 lakhs, दिस इज योर ग्रॉस एडवांस, ठीक है। अब ग्रॉस के बाद क्या करना है, माइनस,
भाई अपने को तो नेट एडवांस निकलना ना, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट नेट एडवांस। अब क्या माइनस करना पड़ेगा, देखो फैक्टर इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही, तो इंटरेस्ट माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। वो इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है, बराबर है, इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करेगा, कितना एडवांस दे रहा है, ग्रॉस 72 लैक्स, कितना बेटा 72 लैक्स का ग्रॉस एडवांस है, तो 72 लैक्स का कितना परसेंट, 18% पर एनम है, बट फिलहाल तो 90 डेज पीरियड का है ये, 90 डेज पीरियड का 72 लैक्स मतलब 90 डेज पीरियड के हिसाब से है, तो इंटू 90 डिवाइड बाय 360, तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट 324, ओके 3,24,000 इज योर व्हाट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। यस वेरी गुड धीरज, वेरी गुड जयेश। चलो अब बेटा ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वो डिडक्ट कर लेगा। अच्छा याद रखो एडवांस देते टाइम पे, फैक्टर जब भी एडवांस देगा एट दैट टाइम जो भी डिडक्ट कर रहा है इंटरेस्ट कमीशन, उसको हमने एक कंसेप्ट दिया था, एक वर्ड दिया था, दैट इज व्हाट अपफ्रंट। क्या अपफ्रंट, कुछ नहीं बोला है तो आप एज्यूम कर सकते हो कि अपफ्रंट बेसिस पे किया आपने, बराबर है, कौन सा बेसिस है, अपफ्रंट। चाहिए तो मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अपफ्रंट है ये, ठीक है। अपफ्रंट में क्या होता है, एडवांस के टाइम पे जब भी फैक्टर एडवांस देगा तभी इंटरेस्ट और कमीशन डिडक्ट कर लेगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी व्हाट, नेट एडवांस, सिंपल। नाउ व्हाट यू हैव टू डिडक्ट नाउ, कमीशन, वो जो फैक्टर का कमीशन है, फैक्टर कमीशन। सेकंड वन इज व्हाट, फैक्टर, फैक्टर कमीशन। फैक्टर कमीशन नॉर्मल सी बात है, फैक्टर का कमीशन तो भाई जितना रिसीवेबल का उसने गारंटी लिया है अभी फिलहाल 90 डेज में 80 लैक्स, ठीक है, तो 80 लैक्स का भाई रिसीवेबल्स का जितना वो कलेक्शन का गारंटी ले रहा है उसके ऊपर कमीशन चार्ज करेगा, सिंपल सा फंडा है। 80 लैक्स का कितना परसेंट है कमीशन, उसका 2% ना, तो 80 लाख का 2% हो गया 1,60,000, दैट्स इट, ठीक है। 80 लाख का 2% दैट इज व्हाट 1,60,000, यस परफेक्ट यश, वेरी गुड धीरज। सो गेट द टोटल 324,160 मतलब कितना डिडक्ट कर लेगा ये, 4,84,000, 4,84,000 वो डिडक्ट कर लेगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट विल बी व्हाट, नेट एडवांस। आफ्टर दैट जो एडवांस अमाउंट मिलेगा वही हो जाएगा बेटा नेट एडवांस। सो दिस इज व्हाट नेट एडवांस, यही नेट एडवांस अमाउंट विल बी पेड टू द कंपनी और फर्म बाय हुम, फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर। कितना, हाउ मच, 67,16,000, that's it, that's done, 67,16,000 हो गया, क्लियर। चलो ये हो गया अपना कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट और एडवांस विल बी पेड टू द फर्म। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट, आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट। अब क्या निकालोगे आप, स्टेटमेंट ऑफ, ये सबका फॉर्मेट दिया मैंने थियरी में, अब आप स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, फैक्टरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलो सो फॉर्मेट नॉर्मल बेटा, so 2 columns for amount, inner and outer, number particulars, okay. So number particulars रुपीस, रुपीस, ठीक है। चलो सबसे पहला क्या आता है बेटा, सबसे पहला इसमें द वेरी फर्स्ट वन, स्टेटमेंट, थियरी में बताया मैंने,
सबसे फर्स्ट एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, और याद रखना ये जो स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन कर रहे हो ये एनुअली कर रहे हो, एनुअल, ठीक है राइट। तो एनुअल एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग, एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। सो एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग क्या है बेटा, किसको, फर्म के लिए। एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, अच्छा उसमें सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट। व्हाट, सेविंग्स ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। सेविंग ऑफ व्हाट बेटा, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर एनम बेसिस पे, ये सब अभी पर एनम, देखो एनुअल आ गया तो पर एनम बेसिस पे, तो कितना अमाउंट था, 5 लाख था बेटा, इट वाज गिवन व्हाट बेटा 5 लाख, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, फैक्टरिंग अरेंजमेंट करने से अपने को, फैक्टरिंग अरेंजमेंट करने से अपना बैड डेट सेव हो जाएगा, सेविंग ऑफ व्हाट, बैड डेट्स। और याद रखना इसको क्या एज्यूम किया आपने, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, हाँ नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में ही याद रखना सेव होता है। सो एज्यूम्ड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, भाई नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में ही जो बैड डेट्स होगा वो फैक्टर बियर करेगा, रिकोर्स फैक्टरिंग होगा तो बैड डेट्स फैक्टर बियर करने वाला नहीं है, याद रखना, तो कंपनी को ही बियर करना पड़ता है, तो फिर ये सेविंग और बैड डेट्स नहीं आएगा। तो फिलहाल कुछ नहीं बोला है तो यू कैन एज्यूम दैट इट्स अ नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग कितना अमाउंट बैड डेट्स कितना था बेटा, 3 करोड़ 20 लाख का 1.5%, 3 करोड़ 20 लाख का 1.5%, चलो कितना हो गया 4,80,000, 4 लाख व्हाट बेटा 80,000, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट एनुअल बेनिफिट, मिल गया अपने को, यस 4,80,000। सो टोटल बेनिफिट, टोटल सेविंग कितना हो गया अपना, ये ले लो। सो आर टोटल सेविंग, देखो फैक्टरिंग का अरेंजमेंट कर रहे हो तो आपको टोटल सेविंग हो रहा है कितना, 9,80,000, यस और नो। ये तो बेटा टोटल सेविंग हो गया, टोटल सेविंग एनुअल, एनुअल का देख रहा हूं याद रखना। अब एनुअल कॉस्ट भी तो निकाल लो भाई, एनुअल बेनिफिट अगर 9,80,000 है तो कॉस्ट कितना है वो तो देखो, कॉस्ट बराबर है, कॉस्ट ज्यादा है कि कम है वो तो देखो पहले। चलो सेकेंड वन अब निकालते हैं हम लोग, क्या, लेस एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, इसमें से बी व्हाट, लेस व्हाट, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आपको लेस करना है, ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। चलो बेटा एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में सबसे पहला तो आपको पता है क्या जाएगा आपका, फैक्टरिंग चार्ज कमीशन, दैट इज एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में सबसे पहला क्या, एनुअल फैक्टरिंग चार्ज दैट इज कमीशन, एनुअल फैक्टरिंग चार्ज दैट इज व्हाट, कमीशन, राइट, एनुअल फैक्टरिंग चार्ज दैट इज व्हाट बेटा, कमीशन। बराबर,
एनुअल कमीशन निकालना, एनुअल। देखो इधर आपने जो कमीशन निकाला है वो क्या है, वो सिर्फ 80 लाख मतलब 90 डेज के डेटर्स के ऊपर है। तो पूरे साल में क्रेडिट सेल कितना है, सेल्स दिया मतलब क्रेडिट सेल ही एज्यूम करोगे उसको, कुछ बोला तो नहीं है कि कैश सेल्स है वो। तो पूरा क्रेडिट सेल्स है आपका 3 करोड़ 20 लाख, कितना बड़ा, 3 करोड़ 20 लाख। तो पूरे साल का क्रेडिट सेल्स, भाई नॉर्मल सी बात है ना, पूरे साल का क्रेडिट सेल्स 3 करोड़ 20 लाख है। तो फर्स्ट 90 डेज कलेक्ट हो जाएगा, तो बाद में दूसरा डेटर्स कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेटर्स, ऐसे चलते रहेगा साल में, तो रोटेशन चलते रहेगा। तो पूरे साल का जो फैक्टर, अगर फैक्टर को पूरे साल अपॉइंट कर रहे हो, पूरे ईयर, तो भाई वो तो पूरा कमीशन आपका 320 पे ही चार्ज करेगा, 3 करोड़ 20 पे। तो आ जाओ, पूरे एनुअल कमीशन क्या हो जाएंगे आपके, 3 करोड़ 20 लाख। याद रखना एनुअल में ये चीज ध्यान देना, नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, ध्यान देते नहीं है, फटाफट अरे भाई इधर तो चार्ज किया है ना 160 डाल दिया, गया फिर खत्म। वो एनुअल है और ये 90 डेज के हिसाब से, याद रखना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बराबर है, मालूम पड़ा, राइट है बेटा। ये 90 डेज का क्या नेट एडवांस के लिए निकाला है, नेट एडवांस, क्योंकि पहला जो फैक्टर होगा वो एडवांस 90 डेज के लिए ही देने वाला है, मतलब 90 डेज पीरियड के लिए, वो एडवांस के लिए आपने निकाला है। और इधर जो कैलकुलेट कर रहे हो पूरा एनुअली आपको कितना बेनिफिट होगा, एनुअली कितना कॉस्ट जाएगा उसके लिए, बराबर है, इवेल्युएशन कर रहा। तो 3 करोड़ 20 लाख का कितना परसेंट है कमीशन, 2%। तो अगर आप फैक्टर को पूरा एनुअली पूरे साल अपॉइंट कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है 2% कमीशन जाएगा। कितना जाएगा 2% कमीशन, 6,40,000, राइट है। एनुअल कमीशन आपका जाएगा 6,40,000, ठीक है। अब आ जाओ, अब सवाल, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ठीक है। अभी इंटरेस्ट भी तो कॉस्ट ही है ना अपना, भाई अगर आप एडवांस ले रहे हो तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन एडवांस, ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो भाई इंटरेस्ट किसके ऊपर जाएगा, जो ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट कितना एडवांस किया था 72 लाख। अब इसका 18% डायरेक्ट। अब बेटा इधर है ना 90/360 मत करना, क्यों, एनुअल निकालना है बेटा अपने को, एनुअल कॉस्ट है कि नहीं। एनुअल कॉस्ट कितना होगा, पूरा 18% है कि नहीं, एनुअल कॉस्ट पूरा 18% के हिसाब से। अब समझो जरा क्या होता है। अब आप बोलोगे सर ये 72 लाख तो लेकिन सिर्फ 90 डेज का, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सबके, आ रहा है कि नहीं, ये तो 90 डेज का है ना। सुनो अब आपको एक लॉजिक बताता हूं मैं 18% कर दिया तो मतलब पूरे ईयर का हो गया। अब सुनो, देखो पहला हमने क्या किया, एडवांस लिया फैक्टर से 72 लाख, ठीक है। 90 डेज खत्म हो गया, देखो फर्स्ट आपने एडवांस लिया 72 लाख, ठीक है। अब 90 डेज खत्म हो गया, फिर आप क्या करोगे, फैक्टर को 72 लाख पे कर दोगे और उसको क्या बोलोगे आप, फैक्टर को 72 लाख पे करके भाई अब हमारा 90 डेज का जो दूसरा डेटर्स है ना उसका कलेक्शन ले लिया। फैक्टर को बोलोगे आप 90 डेज का जो सेकंड डेटर है ना उसका कलेक्शन करो आप, तो वो उसका कलेक्शन करेगा और फिर हम उसको क्या बोलेंगे, अब उसका कलेक्शन कर रहे हो ना तो अब हमको 72 लाख फिर से एडवांस दे दो। तो मतलब 90 डेज के बाद फिर से इसको 72 लाख मिल गया, ठीक है। फिर 90 डेज आया, खत्म हो गया, ठीक है, सब एडवांस कलेक्ट, देखो फिर 90 डेज आया, फैक्टर ने पैसा कलेक्ट कर लिया, गया सब काम, राइट है। अब क्या हो गया, वही सेम रोटेशन, देखो रोटेशन। अब 72 लाख का जो एडवांस था वो क्या करेगा, कंपनी उसको पे करेगा, फिर उसके बाद क्या बोलेगा, कंपनी बोलेगा चलो अब नेक्स्ट 90 डेज का आपको डेटर कलेक्ट करना है, बराबर है। अब नेक्स्ट 90 डेज का आपको डेटर कलेक्ट करना है, अभी भी हमारे पास पैसा नहीं है वर्किंग कैपिटल का, तो आप डेटर कलेक्ट करो और हमको एडवांस दे दो, तो फिर से 72 लाख इसको एडवांस मिल जाएगा, बराबर है। मतलब फंडा क्या हो गया, ये रोटेशन चलते रहेगा, ये रोटेशन क्या रहेगा, चलते रहेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई पूरे साल में ये एडवांस कितना ले रहा है, 72 लाख का ही लोन बन रहा है इसके ऊपर, पूरे साल का 72 लाख का ही लोन बन रहा है कि नहीं, क्योंकि फिर 90 डेज के बाद उसका पेमेंट हो रहा है, उसका पेमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद वो दूसरा एडवांस उठा रहा है 72 लाख, फिर थर्ड में भी पेमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एडवांस उठा रहा है। मतलब 72 लाख आपका कॉमन हो गया, जो फर्स्ट लोन लिया है वो 72 लाख क्या हो गया बेटा, कॉमन एडवांस, समझे कि नहीं, दैट इज व्हाट कॉमन एडवांस। तो हमेशा याद रखना, तो यहाँ 72 लाख के ऊपर 18% आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 72 लाख का 18%, 18% क्यों, पूरे ईयर का है, तो इधर इंटू 90/360 मत करना, तो कितना हो गया
कैलकुलेट किया तो 12,96,000 ओके 12,96,000 चलो टोटल करो कितना आ रहा है, कितना 19,36,000 हाउ मच 19,36,000 दैट्स इट क्लियर है, मालूम पड़ा, लॉक कर दूं। तो ये सब अरेंजमेंट चलते रहता है बेटा, ठीक है, ये अरेंजमेंट चलते रहता है। कंपनी ने एक बार एडवांस उठा लिया, बराबर है, उसके बाद वो फैक्टर पैसा कलेक्ट करेगा, फिर फैक्टर को पैसा मिल गया, खत्म, फिर कंपनी बोलेगा चलो हमारा नेक्स्ट डेटर्स भी आप कलेक्शन करो 90 डेज का, ठीक है, फिर एडवांस मिलेगा उसको, वो एडवांस चलते रहेगा, वो रोटेशन होते रहेगा, ठीक है, मालूम पड़ा, वो रोटेशन होते रहेगा। वो कंपनी उधर क्या बोलेगा, हमारे पास 72 लैक्स है ना, वो रहने दो, आपको पैसा मिल गया ना, तो समझो ये 72 लैक्स हमने फिर से एडवांस लिया नेक्स्ट डेटर्स के लिए, तो वो रोटेशन होते रहता है, वो रोटेशन चलते रहता है। इसका मतलब कंपनी की लाइबिलिटी 72 लैक्स की ही रहेगी, बराबर है, मालूम पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे पेमेंट मिलते जाएगा 90 डेज पे, एक लाइबिलिटी खत्म, दूसरा लाइबिलिटी 72 लैक्स का चालू, फिर एक लाइबिलिटी खत्म, दूसरा लाइबिलिटी 72 लैक्स का चालू, तो 72 लैक्स आपका कॉमन रहेगा, समझा कि नहीं, 72 लैक्स क्या रहेगा बेटा, दैट विल बी कॉमन। चलो अब देखो आपका क्या हो रहा है बेटा, इधर 19,36,000 ये आपका कॉस्ट आ गया। अब देखो इधर कॉस्ट कितना आ गया 1936 और बेनिफिट सिर्फ 9,80,000 है, मतलब क्या हो गया इधर, नेट कॉस्ट आ गया, क्या आ गया, कंपनी को, फर्म को क्या आ गया बेटा इधर, नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट टू द फर्म, नेट कॉस्ट टू द फर्म और कंपनी कितना, कितना आ रहा नेट कॉस्ट 9,56,000 ओके 9,56,000 व्हाट, दिस इज द नेट कॉस्ट टू द फर्म, दैट्स इट। अब नेट कॉस्ट आ गया, फिर आ जाओ इफेक्टिव कॉस्ट निकाल लो। अब क्या कैलकुलेट करना है अपने को, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, ये बोला ये ना निकालने के लिए, तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। चलो अब इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एकदम कॉमन फॉर्मूला, सबसे पहला जो नेट कॉस्ट आया उसको डिवाइड कर दो किससे, नेट एडवांस है, जो नेट अमाउंट एडवांस किया था उसने फैक्टर ने, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो बस। तो नेट कॉस्ट आपको कितना आया है 9,56,000, नेट एडवांस कितना था 67,16,000, आ जाओ, सो नेट कॉस्ट है 9,56,000, नेट एडवांस है 67,16,000 इंटू 100, चलो तो कितना आ रहा है बोलो 14.3%, दैट्स इट। सो दिस इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, दैट इज कितना हो गया 14.23%, यही हो गया इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। फैक्टरिंग टू द फर्म और कंपनी, दैट्स इट, बराबर है। अब यहाँ इवेल्युएशन करने से आपको ये मालूम पड़ रहा है सीधा कि भाई देखो फैक्टरिंग की सर्विसेज में अपने को बेनिफिट्स कम हो रहा है लेकिन कॉस्ट अपना ज्यादा है, ठीक है, बराबर है। ये एक इवेल्युएशन आप देख सकते हो कि कॉस्ट अपना ज्यादा है, अपने को कितना कॉस्ट आ रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म कितना जा रहा है 14.23% का अपना कॉस्ट जा रहा है। तो फिर वो कंपनी का डिसीजन होगा, कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन लेगा क्या करना है, फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करनी है नहीं करनी है, वो डिसीजन के ऊपर है, कि कॉस्ट तो जाहिर है 14.23% का कॉस्ट जा रहा है, दैट्स इट, बराबर है कि नहीं, आपका कॉस्ट है, राइट है, बेनिफिट्स आपको थोड़ा कम मिल रहा है, इधर कॉस्ट ज्यादा है, उसके हिसाब से सारे फैक्टर्स कंसिडर करके कंपनी डिसाइड करेगा कि अपने को फैक्टरिंग अरेंजमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बराबर है। फिर भी 14.23% एक नॉर्मल है, कंपनी के ऊपर से इतना हेडेक तो कम हो रहा है, लेकिन ठीक है, तो वो कंपनी उसके लिए पूरा इवेल्युएशन करके डिसाइड करता है कि क्या करना है, ठीक है, और वो इवेल्युएशन करने के लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, ओके डन, ठीक है, हो गया सबका क्लियर। तो याद रखना हमेशा एनुअल जब भी इंटरेस्ट चार्जेस निकालोगे तो नॉर्मल सी बात है, देखो कंपनी का लाइबिलिटी ये एक फिक्स रहेगा, नॉर्मल सी बात, 72 लैक्स का जो लोन लिया है पहला एडवांस लिया वो फिक्स रहेगा, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे डेटर का कलेक्शन होते जाएगा उसका लाइबिलिटी सेट ऑफ होते जाएगा और फिर से नया लोन उठाएगा नेक्स्ट डेटर्स के लिए, फिर से नया लोन, तो 72 लैक्स तो कॉमन रहेगा, वो लाइबिलिटी उसका हर साल, मतलब पूरे साल में वो 72 लैक्स फिक्स है ही,
बराबर है, क्योंकि जैसे कलेक्शन होगा एक लाइबिलिटी सेट ऑफ, दूसरा फिर से 72 लाख का लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, तो सीधा बोलेगा ना बेटा कंपनी फैक्टर हो गया ना, एक पेमेंट हो गया ना, अब फिर से हमको 72 लाख का दे दे, जो नेक्स्ट 90 डेज है 72 लाख का एडवांस हमको दे दे, ठीक है। तो वो तो अरेंजमेंट होता है फैक्टर और कंपनी के बीच में कि आपको 72 लाख है ना, वही रखो, मैं डेटर से कलेक्ट करके वो पैसा मैं अपने पास रखता हूँ, बस वो सब अरेंजमेंट तो म्यूचुअल अरेंजमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दैट्स इट, ठीक है। बट याद रखना इंटरेस्ट चार्जेस ऑन एडवांस में 72 लाख का डायरेक्ट 18%, इधर 90/360 मत करना, एनुअल ले रहे हो ना बेटा, दैट इज वाई, क्लियर। तो इतना करके रखना सब लोग। तो यहाँ आ गया अपना इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज व्हाट 14.23%, डन, ओके।